السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو بابو ولاگز اینڈ انفو۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، 20ویں صدی کو ٹیکنالوجی کی صدی کہا جاتا ہے۔ اس صدی میں انسان نے جتنی ترقی کی ہے، اتنی ترقی پچھلے کئی ہزار سالوں میں نہیں کی۔ اس صدی میں جہاں نئی ایجادات ہوئیں، وہاں پرانی ایجادات میں بھی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس صدی میں ہی ہوائی جہازوں کو متعارف کروانے کے ساتھ ساتھ بحری جہازوں میں بھی جدت آئی۔ بحری جہاز آج کی ایجاد نہیں، بلکہ کئی صدی پرانی ایجاد ہے، اور یہ صدیوں سے انسان کے تجارتی اور سفری مقاصد پورے کرتے آئی ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں جہاں تجارت کو فروغ ملا، وہاں بحری جہازوں کی اہمیت بڑھ گئی۔ اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں بہت سی شپنگ کمپنیز نے بڑے جہاز متعارف کروائے، وہاں انہی کمپنیز میں برطانیہ کی وائٹ سٹار لائن کمپنی بھی شامل تھی، جس نے مشہور زمانہ جہاز ٹائٹینک تیار کروایا، اور یہ جہاز ایک سفر کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ دوستو، 3 سال میں تیار ہونے والا یہ دیو ہیکل جہاز 3 گھنٹے میں کیسے تباہ ہوا؟ کیا واقعی یہ جہاز ایک برفانی پودے سے ٹکرا کر تباہ ہوا؟ کیا سمندر کی تہہ میں اس جہاز کا ملبہ اب بھی موجود ہے؟ اور اس کے علاوہ بہت سے دلچسپ حقائق میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹائٹینک کا پورا نام رائل میل شپ ٹائٹینک تھا، اور اس کو بنانے کا مقصد مسافروں کو آرام دہ سفر فراہم کرنا تھا، اور یہ جہاز وائٹ سٹار ادارے کی ملکیت تھا، اور اسے ہارلینڈ امنوف نامی فرم نے تیار کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کمپنی نے اسی طرز کے 2 اور جہاز تیار کیے تھے، جن کا نام براٹینک اور اولمپک تھا، اور یہ وائٹ سٹار کمپنی کی ہی ملکیت تھی، لیکن ان میں سب سے بڑا جہاز ٹائٹینک تھا۔ اس کی جسامت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف اس کا ڈھانچہ بنانے میں 2 سال کا عرصہ لگا۔ ڈھانچہ تیار ہونے کے بعد 1 سال میں اس کی ڈیکوریشن پر لگایا گیا، اور اس طرح یہ جہاز 3 سال میں مکمل طور پر تیار ہوا۔ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تقریباً 3000 مزدوروں نے کام کیا۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج کے دور میں بہت بڑے جہاز سمندر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ٹائٹینک کو اس وقت کا سب سے بڑا لگژری جہاز ہونے کا اعزاز حاصل تھا، اور یہ جہاز 882 فٹ لمبا، 92 فٹ چوڑا اور 75 فٹ اونچا تھا۔ اس کا وزن 46,328 ٹن تھا، اور اس میں 3500 افراد کی گنجائش تھی۔ اس عظیم جہاز اور اس وقت کے لگژری جہاز کو تیار کرنے پر $7.5 ملین کی لاگت آئی، جو اس وقت کی تقریباً $40 کروڑ بنتی ہے۔ ٹائٹینک میں ایک ریسٹورنٹ، جم اور فرسٹ کلاس مسافروں کے لیے ایک سوئمنگ پول بھی تھا، اور اس کے علاوہ ٹائٹینک کا اپنا ایک اخبار بھی تھا جو ہر رات اس جہاز میں پرنٹ ہوتا تھا۔ جہاز میں دھوئیں کے اخراج کے لیے 4 چمنیاں بنائی گئی تھی، اور اس کی اونچائی 81 فٹ تھی۔ 4 میں سے صرف 3 چمنیاں ہی دھواں خارج کرتی تھی۔ اس کا اندرونی ڈیزائن لندن کے ایک ہوٹل دی رٹز سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا۔ 1906 میں تعمیر ہونے والا یہ ہوٹل آج بھی لندن میں موجود ہے۔ جہاز میں 50 ٹیلی فون تھے، جس سے مسافر زمین تک رابطہ کر سکتے تھے۔ ٹائٹینک نے اپنا پہلا سفر 10 اپریل 1912 میں کیپٹن سمتھ کی قیادت میں کیا۔ اس جہاز کی اتنی مقبولیت تھی کہ جس دن اس جہاز نے سفر کا آغاز کرنا تھا، اسے دیکھنے کے لیے 1 لاکھ کے قریب لوگ بندرگاہ پر پہنچے۔ یہ جہاز کچھ دیر کے لیے فرانس کی ایک بندرگاہ پر بھی رکا، اور وہاں سے 11 اپریل کو کچھ مسافروں کو بٹھانے کے بعد ٹائٹینک نے اپنا رخ آئرلینڈ کی بندرگاہ کی طرف کیا۔
11 अप्रैल को ही न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। 11 अप्रैल को शुरू होने वाला ये सफ़र 7 दिनों पर मुहित था और इसे 17 अप्रैल 1912 को न्यूयॉर्क पहुंचना था। लेकिन बदकिस्मती से ये बहरी जहाज़ अपना पहला सफ़र ही मुकम्मल न कर पाया और 14 अप्रैल की रात 11:40 पर एक बर्फ़ानी पौधे से टकरा गया। 3500 अफराद की गुंजाइश रखने वाले इस जहाज़ पर उस वक़्त अमले के समेत 2200 अफराद सवार थे, जिसमें उस वक़्त के अमीर तरीन और मशहूर अफराद के अलावा वाइट लाइन कंपनी के चेयरमैन ब्रूस स्मिथ और जहाज़ के चीफ डिज़ाइनर थॉमस एंड्रोस भी सवार थे। एंड्रोस वही शख्स था जिसने डिज़ाइन करते वक़्त ये दावा किया था कि यह जहाज़ कभी नहीं डूब सकता। दोस्तों 10 अप्रैल को अपना पहला सफ़र शुरू करने वाला ये देव हैकल जहाज़ 14 अप्रैल को उस मकाम पर पहुंचा जहां कई बर्फ़ानी पौधे मौजूद थे। टाइटैनिक के अमले को इस बर्फ़ानी रास्ते पर सफ़र करने वाले कई जहाज़ों ने इस बर्फ़ानी पौधों के बारे में खबरदार किया, लेकिन जहाज़ के हुक्काम ने इन सिग्नल्स को नज़रअंदाज किया। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जीप रोस ने टाइटैनिक को इसलिए बिना रुकवाया कि वो मुकर्रर वक़्त से एक दिन पहले पहुंच के रिकॉर्ड कायम करना चाहता था। दोस्तों इस समंदरी रास्ते पर सफ़र करने वाले कई बहरी जहाज़ों ने रेडियो के 6 सिग्नल्स भेजे जिसमें बर्फ़ानी पौधों के बारे में खबरदार किया गया, लेकिन टाइटैनिक उसी रफ्तार से आगे बढ़ता गया और 14 अप्रैल की रात 11:40 पर साहले समंदर से 740 किलोमीटर की दूरी पर यह देव हैकल जहाज़ 100 फुट ऊंचे बर्फ़ानी पौधे से टकरा गया। इस हादसे में बच जाने वाले कई मुसाफिरों के मुताबिक जब बर्फ़ानी पौधा नज़र आया तो सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर था और इस जहाज़ को इतनी जल्दी मोड़ना मुमकिन ही ना था। कैप्टन स्मिथ ने जहाज़ को बाएं जानिब मोड़ने का हुक्म दिया, लेकिन उस वक़्त बहुत देर हो चुकी थी। जहाज़ के दाएं तरफ बर्फ़ानी पौधे से टकराने की वजह से बहुत बड़ा शगाफ पड़ चुका था और पानी जहाज़ के सबसे निचले हिस्से में दाखिल होना शुरू हो गया था। कहते हैं कि जहाज़ इस हिसाब से बनाया गया था कि अगर जहाज़ के 4 कंपार्टमेंट में भी पानी चला जाए तो जहाज़ डूब न सके, लेकिन अफसोस पानी 4 की बजाय 6 कंपार्टमेंट में दाखिल हो चुका था, जिसके बायस जहाज़ एक तरफ को झुकने लगा। पहले पहल तो जहाज़ के मुसाफिरों को इल्म ही ना हुआ कि क्या वाक़या दरपेश आया है, लेकिन 1 घंटे में पूरे जहाज़ में खलबली मच गई। कैप्टन स्मिथ ने मदद के लिए आसमान की तरफ आग के गोले छोड़ने का हुक्म दिया और साथ साथ औरतों और बच्चों को लाइफ बोर्ड में बैठाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने खतरे को भांपकर समंदर में छलांगें लगाना शुरू कर दी। दिलचस्प बात यह है कि टाइटैनिक में मुसाफिरों के हिसाब से 60 लाइफ बोर्ड होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि जहाज़ मालकान को यकीन था कि जहाज़ नहीं डूब सकता, इसलिए सिर्फ 20 लाइफ बोट रखी गई। कैप्टन स्मिथ की कोशिशों से 20 की 20 लाइफ बोट को समंदर में उतार दिया गया। दोस्तों 3 सालों में तैयार होने वाला ये देव हैकल जहाज़ 3 घंटों में डूब गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जहाज़ आखिरी वक़्त में 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था और उस वक़्त भी जहाज़ से लोग छलांगे लगा रहे थे। दोस्तों इस जहाज़ में सफ़र करने वाले 2200 अफराद में से 1500 अफराद अपनी जान गंवा बैठे और तकरीबन 700 अफराद को लाइफ बोर्ड के ज़रिए बचाया जा सका। नफसा नफसी और गहमा गहमी के आलम में कुछ लाइफ बोर्ड में गुंजाइश से ज़्यादा और कुछ लाइफ बोर्ड में गुंजाइश से कम लोग सवार थे। दिलचस्प बात यह है कि जब जहाज़ डूब रहा था तो टाइटैनिक से तकरीबन 37 किलोमीटर के फासले पर एक जहाज़ जिसका नाम कैलिफोर्नियन था वो भी मौजूद था। इस जहाज़ के कैप्टन ने टाइटैनिक की तरफ से
दिए जाने वाले सिग्नल्स पर कोई तवज्जो न दी और अपना सफ़र जारी रखा। इसके अलावा जो एक जहाज़ टाइटैनिक के बिल्कुल करीब था वो RMS कारपेथिया था। वो तकरीबन टाइटैनिक से 107 किलोमीटर की दूरी पर था। टाइटैनिक की तरफ से सिग्नल्स मिलते ही RMS कारपेथिया के कैप्टन ने फ़ौरन जहाज़ का रुख टाइटैनिक की तरफ किया और सुबह तकरीबन 3:30 बजे के करीब टाइटैनिक के करीब पहुंचा। लेकिन अफसोस, कारपेथिया के पहुंचने से 1 घंटा पहले टाइटैनिक डूब चुका था। जिंदा बच जाने वाले 700 अफराद कारपेथिया में सवार हो गए। ये जहाज़ टाइटैनिक के मुसाफिरों को लेकर 18 अप्रैल को न्यूयॉर्क पहुंचा। इस जहाज़ के अमले को इंसानी जानें बचाने पर खराज तहसीन पेश किया गया और इस जहाज़ के कैप्टन को अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से चांदी की ट्रॉफी भी दी गई। दोस्तों, टाइटैनिक तकरीबन 1 सदी पहले डूब चुका था, लेकिन इसकी वजूहात साइंसदान आज भी ढूंढने में लगे हैं। जहाज़ के हादसे के बाद जहाज़ के कैप्टन स्मिथ को ज़िम्मेदार ठहराया गया कि इसने मुख्तलिफ जहाज़ों की तरफ से मिलने वाले सिग्नल्स को नज़रअंदाज किया था और इसके अलावा जहाज़ में मौजूद लाइफ बोर्ड की कमी भी ज़िम्मेदार करार दी गई, क्योंकि अगर लाइफ बोर्ड ज़्यादा होती तो ज़्यादा इंसानों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन इन कोताहियों के बावजूद कैप्टन स्मिथ अमले के साथ बच्चों और औरतों को आखिरी दम तक लाइफ बोर्ड में सवार करवाता रहा। कहा जाता है कि कैप्टन स्मिथ वो आखिरी शख्स था जिसने उस वक़्त छलांग लगाई जब जहाज़ मुकम्मल तौर पर डूब चुका था। इस वजह से उसे जहाज़ में मौजूद सबसे दलेर इंसान कहा जाता है। अपनी जान देकर दूसरों की जान बचाने के इस अजीम जज्बे को खराज तहसीन पेश करने के लिए इंग्लैंड में इसका मुजस्समा भी नस्ब किया गया है। लेकिन इसके बरअक्स जहाज़ के मालिक वाइट लाइन स्टार कंपनी के चेयरमैन ने जैसे ही देखा कि जहाज़ डूब रहा है, इसने एक लाइफ बोर्ड की मदद ली और जहाज़ में कूद गया और अपनी जान बचा ली। और इसके अलावा वाइट स्टार लाइन कंपनी के चेयरमैन पे ये भी इल्ज़ाम लगा कि इसने ही कैप्टन स्मिथ को हुक्म दिया था कि जहाज़ की रफ्तार को कम ना किया जाए। इसलिए वाइट लाइन स्टार कंपनी के चेयरमैन को बुज़्दिल तरीन शख्स कहा जाता है। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने के 70 साल बाद 1985 में 1985 में एक अमेरिकी रिटायर्ड नेवी अफसर और प्रोफेसर रॉबर्ट बिलार्ड ने ढूंढ निकाला कि टाइटैनिक का ये मलबा समंदर की तह में 3800 मीटर नीचे आज भी मौजूद है। मलबा मिलने पर जहां बहुत से सवालों के जवाबात मिले, वहां मज़ीद बहुत से सवालात पैदा हो गए। जैसा कि जहाज़ के हादसे में बच जाने वाले ऐनी शाहिदीन का कहना था कि जहाज़ 2 हिस्सों में टूट गया था, लेकिन उस वक़्त उनकी बातों पे किसी ने यकीन न किया। लेकिन जब 1985 में जहाज़ का मलबा मिला तो ये बात सच साबित हुई कि वो लोग सच कह रहे थे और जहाज़ वाकई ही 2 हिस्सों में टूट गया था। इसके बाद एक तहकीकाती टीम ने रिसर्च की कि जहाज़ बर्फानी पौधे से टकराने से पहले ही जहाज़ में आग लग चुकी थी, जिससे जहाज़ का निचला हिस्सा कमज़ोर हो चुका था और बर्फानी पौधे से टकराने के बाद जहाज़ को ज़्यादा नुकसान पहुंचा और भड़कने वाली आग 1000 सेंटीग्रेड तक जा पहुंची। अमले ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे और शायद मुसाफिरों को आग के बारे में ना बताया गया। ये मालूमात टाइटैनिक के मलबे पर 30 साल रिसर्च करने के बाद आयरलैंड के एक सहाफ़ी ने दी है। दोस्तों, टाइटैनिक के हादसे में तकरीबन 300 अफराद की लाशें मिली। बाकी लोगों की लाशें आज तक न मिल सकी। ना मिलने वाली लाशों में कैप्टन स्मिथ की लाश भी शामिल है। इन सब को कनाडा के एक कब्रिस्तान में हॉलीफैक्स में दफन किया गया। जब जहाज़ डूबने के करीब आया तो वहां मौजूद मौसीकारों ने म्यूज़िक बजाना शुरू कर दिया था ताकि आखिरी मिनट में लोग घबराहट का शिकार ना हों। मुसाफिरों में बच जाने वाले सबसे कम उम्र मुसाफिर
बेबी मेलूना थी जिसकी उम्र चंद माह थी। मेलूना ने 98 बरस की उम्र और 2009 में वफात पाई। एक अंदाजे के मुताबिक टाइटैनिक का मलबा जो समंदर में 3800 मीटर नीचे है वो तकरीबन 2030 में गल सड़कर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस जहाज़ में एक नर्स भी शामिल थी जो टाइटैनिक हादसे में जान बचाने के बाद एक और हादसे में जान बचाने में कामयाब हुई। जहाज़ में अमले के लिए कुछ दूरबीनें रखी गई थी, लेकिन जिस बॉक्स में वो रखी गई थी उसकी चाबी किसी के पास ना थी। अगर दूरबीनें मौजूद होती तो शायद अमला बर्फानी पौधे को पहले देख सकता। दोस्तों, वैसे तो टाइटैनिक हादसे पर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन किताबों के अलावा बहुत सी हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मकबूलियत जेम्स कैमरॉन की फ़िल्म ने हासिल की। ये फ़िल्म 1997 में बनाई गई। इस फिल्म ने $2 अरब से ज़ायद का बिजनेस किया। दोस्तों, 1997 में बनने वाली ये फ़िल्म उस वक़्त की सबसे महंगी तरीन फ़िल्म थी। उस पर तकरीबन $20 करोड़ का खर्च आया था। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि जितना खर्च टाइटैनिक जहाज़ पर आया था, इस फिल्म पर उससे कई गुना ज़्यादा खर्च आया। दोस्तों, टाइटैनिक हादसे के बाद इंग्लैंड के साथ साथ अमेरिका ने भी तहकीकात शुरू कर दी। इस तहकीकात में हादसा पेश आने की वजूहात जानने की कोशिश की गई और हादसे में बच जाने वाले अफराद के बयानात को मद्देनज़र रख के एक लाहे-अमल तैयार किया गया। हादसे के 1 साल बाद बरतानवी पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया कि जहाज़ में मुसाफिरों की तादाद के मुताबिक लाइफ बोट की मौजूदगी ज़रूरी करार दी गई और इसके अलावा एक इंटरनेशनल टीम तश्कील दी गई जो कि समंदर में मौजूद बर्फानी पौधों के बारे में जहाज़ों को आगाह करती रहेगी ताकि मुस्तकबिल में टाइटैनिक जैसा ख़तरनाक हादसा पेश ना आए। आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी कैसी लगी? अपने कमेंट के ज़रिए अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो की अपडेट्स बर वक्त मिल सकें।